Walaikum salam. We're discussing frequency distribution. Frequency distribution. Yes, I think so. We think we were discussing distribution or something else. What we were discussing in the last class. So relative frequency. So means frequency distribution. Then we discussed Yes. the means relative frequency. Then we discussed cumulative frequency. Yes, today another portion of chapter 2 we are discussing. Yeah, I think we started to discuss central tendency, chapter number 3. Are you watching this screen? Ji sir. Yes, Yes. sir. Good. So I think these things we discussed in the last class. Okay. Today we are going to discuss different types of diagrams and graphs. Then I have to move for the chapter number 3. So, but as we discussed in the class, you can open the book. There are different means categories of the diagrams. Dimensional diagrams, or you say linear diagrams. So these are the linear diagrams, names of the linear diagrams. Simple bar diagram, multiple bar diagram, component bar diagram. So these are the linear diagrams or one-dimensional diagrams. Then also we have to discuss today two-dimensional diagram means rectangles. Then also pi diagram we have to discuss. And then we have to discuss profit and loss diagram. And then I have to go for different types of graphs also. So simple bar diagram, this is very simple. Just we have bars. Babu, this is the example of the simple bar diagram. Just to see here, the following data gives the information of the number of children involved in different activities. So, activity, suppose these are the dance, music, art, cricket, football, etc. activities, and number of children. So, number of children, basically, this is the frequency. And how many children? So, for every activity, so just here steps in construction of bar diagrams. I have mentioned over here. On a graph, draw two lines perpendicular to each other. This is the x-axis, one line of x, the line of y-axis. So the horizontal line is x-axis and the vertical line is y-axis. Along the horizontal axis, choose the uniform width of bar. So we have to select the uniform width of each bar. So just here, how many activities are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 activities. So for each activity, we have to draw a bar of equal width. The width must be same. The width must be same for every bar. And then an uniform gap between the bars. Means we have to select the uniform width of the bar. There is the uniform gap between the bars.
For example, here this is the gap in these two bars. This is the gap. This is the one bar. This is the second bar. The gap is of 2 squares. But if here is also again the gap is of 2 bars. So just to see here, in between every bar, the gap is same. Okay, but this is recommended. The gap may not be less than half of its width. बाबू ये जो को बार है, ये जो बार है, इसकी जो विड्थ है कितने स्क्वायर्स पे डिपेंड कर रही है? 2 स्क्वायर्स पे डिपेंड कर रही है. तो उसके जो गैप है वो वो जो है या तो सेम हो या तो उसके आधे तक हम लेके जा सकते हैं, लेकिन आधे से कम गैप हम नहीं दे सकते. दिस इज रिकमेंडेड, क्योंकि इसके जो डायग्राम की खूबसूरती के लिए ये हमें है. अगर आप जो है आपकी किताब में खोलेंगे तो वहां पे भी एक इंस्ट्रक्शन दी हाउ टू ड्रा दी डायग्राम्स. तो वहां पे अगर आप अपने पास जो पेज खोलेंगे तो बार डायग्राम के आपके लिखे होंगे ये जो ओके ये सिंपल बार डायग्राम के पेज नंबर सिंपल बार डायग्राम आप खोलेंगे 2.7.1. अगर आपके पास किताब है तो आप खोलो तो वहां पे भी 2.7.1 सिंपल बार चार्ट, तो वो भी पूरा एक मेथड लिखा हुआ है. तो वहां भी लिखा हुआ है स्पेस सेपरेटिंग द बार्स एक्सीड द विड्थ ऑफ द बार. जो उसके जो भी बार की विड्थ है उससे ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ इट्स विड्थ. उसके हाफ से कम नहीं होना चाहिए. तो ये आप नोट लीजिएगा किताब में. बेटा क्या पेज है आपकी किताब में? 30 मेरे पास Sir, 30. 30. ठीक है, तो वहां पे सिंपल बार डायग्राम होगा 2.7.1 टॉपिक है. तो उसमें आप ये पढ़ लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो वो उससे ज्यादा नहीं हो और उसके आधे से कम नहीं होना चाहिए. ओके, तो आई होप के ये इस ग्राफ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है इस बनाने में. ठीक है, और यहाँ पे एक्सेस स्पेस का स्केल ले लेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये अलोंग द वर्टिकल चूज अ सूटेबल स्केल इन ऑर्डर टू हाइट्स ऑफ द बार. ये जो राइट हैंड पे मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है हमने कैसे बनाया हुआ है. अलोंग द वर्टिकल एक्सिस चूज अ सूटेबल स्केल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द हाइट्स ऑफ द बार्स फॉर द गिवन वैल्यूज. सो फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो वाई एक्सिस पे उसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे. सर जी बाबा. सर जेको फुटबॉल है उनजी गैप मिलियो आहे 53 नंबर ऑफ चिल्ड्रन जी जी हाँ, ऐं उनजो बार जेको आहे 35 ताईं एंड पियो थिए. वेरी गुड. तो ये ॻाल्हि समझ में अची वई न? तोखे ॻाल्हि समझ में अची वई न बाबा? बाबा तोखे ॻाल्हि समझ में अची? तो हिते जो डेटा में एरर आहे फुटबॉल अच्छा जेको मिस्टेक आहे सर. हा माना मिस्टेक आहे फुटबॉल जा 35 आहिनि हिते. ठीक, थैंक यू सर. फुटबॉल जा 35. बाबा हा, थैंक यू. ठीक है. ओके बेटा, थैंक यू. हाणे मूंखे सुठो तो यादि ॾियारियो, हिन खां करेक्ट करे छॾींदुसि. ठीकु आहे बाबा. बाक़ी ॻाल्हि क्लियर है बाबा? जेको सिंपल बार डायग्राम है जो बेसिकली जो बार चार्ट्स है, ये जो भी बार चार्ट्स हैं वो आपकी ये जो डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बनते हैं मोस्टली. कौन सी डेटा के लिए बनते हैं? क्वांटिटी या लीजिएगा, लेकिन कभी टाइम सीरीज डेटा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो यहाँ में क्वालिटेटिव डेटा के लिए मोस्टली ये होता है. ये बात नोट कीजिए. तो ये देखो क्वालिटेटिव डेटा है ना बेटा, एक्टिविटीज है यहाँ पे. डांस है, म्यूजिक है, तो एक्टिविटीज ये जो है इसकी वैल्यूज क्या है? डांस है, म्यूजिक है, आर्ट है, क्रिकेट है, फुटबॉल दिखाया, ये आर्ट का दिखाया, ये क्रिकेट का दिखाया, फुटबॉल का दिखाया. तो फिर इसकी जो हाइट हो रही है वो तो कीपिंग इन व्यू दी फ्रीक्वेंसी, वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हो रही है. ठीक है, तो नोट कीजिएगा सिंपल बार डायग्राम या मल्टीपल बार डायग्राम्स वगैरह जो होते हैं तो मोस्टली किसके लिए, किस किस्म के डेटा के लिए होते हैं? जो डेटा हमारी क्वालिटी होती है उसके लिए होते हैं. तो आई होप के दिस इज क्लियर टू यू.
बाबू उसके बाद ये जो हमने वो किया था ना कि जो गेस्ट थे स्टेइंग एट मरादा इन, ठीक है, तो वो भी क्वालिटी तो कह रहा था पुअर है, बिलो एवरेज है, एवरेज है, तो उस डेटा को भी यहाँ पे सिंपल बार डायग्राम से शो किया है। यू आर गेटिंग दिस थिंग। तो पुअर का जो फीडबैक था वो कितने का था, 2 का था। बिलो एवरेज का कितने का था, 3 से था। और सबसे ज्यादा जो है वो फीडबैक किसका था, कौन सी रेटिंग का था, सबसे ज्यादा अबव एवरेज था। तो ये भी एक जो बार डायग्राम, तो देखो ये भी एक बार मुख्तलिफ तरीकों से शो करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ कलर से शो करो, मुख्तलिफ कलर से या मुख्तलिफ शेडिंग लगा दो, और फिर जो गैप होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट टू बी नोटेड, गैप जो है वो विड्थ की जो बार है उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए और आधे से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है जनाब। तो ये भी हमारा सिंपल बार डायग्राम। अभी देखा ये एक एग्जांपल है। दूसरा कौन सा, मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, तो मल्टीपल बार डायग्राम क्या है, फ्रेंक्स फॉर्म स्टैंड gave track of the number of pounds on vegetables sold over 3-day period. The results are listed on the table below. ये टेबल में जो रिजल्ट दिखाई गई है, तो डिफरेंट टाइप्स की जो वेजिटेबल है, ठीक है, वो 3 डिफरेंट डेज पे कितनी सेल हुई है, ये डेटा है। सपोज स्क्वाश है, वो डे 1 पे कितनी सेल हुई थी, 31 पाउंड, 32 पाउंड। डे 2 पे कितनी जो सेल हुई थी, 36 पाउंड। और डे 3 भी कितनी सेल हुई थी, 36 पाउंड। और फिर ये जुचनी है, कॉर्न है, कैरेट्स हैं, तो इन दिस वे कितनी जो है वहां पे जो नाम है वेजिटेबल्स, कितने वेजिटेबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 वेजिटेबल्स हैं। और ये हर वेजिटेबल रीजन है कि फॉर एग्जाम्पल स्क्वाश जो है वो 3 डिफरेंट डेज में कितनी सेल हुई है। तो देखो अभी जो ये मल्टीपल बार चार्ट है, मल्टीपल मकसद इसमें कंपैरिजन होती है। This is used for comparison purpose. So amount of vegetables sold at Frank's farm stand. यहाँ पे देखो स्क्वाश का एक अलग पोर्शन बनाया हुआ, नीचे देखो इसके डायग्राम में। जी बाबा क्वेश्चन है, यस बेटा, ये पोर्शन देख रहे हैं स्क्वाश का। तो स्क्वाश का जो पोर्शन है, तो इसमें 2 डेज की डेटा है। तो 3 जो डेज, तो यहाँ पे ये इंडिकेटर भी दिया हुआ है जिसके राइट हैंड पे आप देख रहे हैं। तो डे 1 को ब्लू से शो किया हुआ, डे 2 को जो है वो हल्का पिंक से रेड किया हुआ, इसको शो किया हुआ, डे 3 को जो है वो ग्रीन से शो किया हुआ। तो ये जो डे 1 जो है, ये जो ब्लू बता रहा है कि ये क्या है, डे 1 है। ये हल्का जो रेड या पिंक हम उसको कहते हैं, वो डे 2 को शो कर रहा है, ग्रीन जो है डे 3 को शो कर रहा है। तो स्क्वाश स्क्वाश जो है वो आप देख रहे हैं कि 32 पाउंड है। तो देखो जो ब्लू जो यहाँ पे स्क्वाश वाला चल रहा है, तो 32 पाउंड तक है, फिर 36 पाउंड पे जा रहा है। देखो ये दूसरे दिन पे, थर्ड डेज पे भी 36 है, सेम है। अब ये क्लियर है, मल्टीपल बार डायग्राम, हर सब्जी का जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है वो क्लियर है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मतलब मल्टीपल बार डायग्राम क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ पे किसी को। सर एक बार दोबारा समझा दें ये। अच्छा बेटा ये सिंपल क्लियर है, ये वाला क्लियर है, सिंपल ये वाला क्लियर है। ये वाला क्लियर सर, जो दूसरा है वो नहीं। ओके ये वाला ये क्लियर वाला नहीं है। ओके अभी जी इसमें देखो, इसमें वेजिटेबल्स के नाम्स दिए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट वेजिटेबल्स जो हैं वो, जो हर वेजिटेबल उनकी जो डेटा दी हुई है 3 दिन पे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ, अभी मैं बीबी पार्ट 1 देखो, अभी बीबी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स जो हैं आज कितने जो है वो प्रेजेंट है, 76 है। तो लास्ट वीक में कितने प्रेजेंट थे, सपोज 85 थे। उससे पहले वाले में कितने थे, 50 थे। तो मकसद है कि ये 3 हफ्ते में हमने क्लासेस दी हैं ऑनलाइन,
तो उनके कंपैरिजन बना रहा हूं यहाँ पे। तो BBA1 की, BBA2 की, BBA3 की, BBA4 की, ये भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं तो एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले एक BBA1 का पोर्शन बना रहा हूँ, BBA पार्ट 1, इसको मैं BBA पार्ट 1 का, और फिर BBA पार्ट 2 का, ठीक है, BBA पार्ट 3 का, BBA पार्ट 4 का। लेकिन BBA पार्ट भी मैं ये कंपेयर करना चाहता हूँ कि अटेंडेंस का, जो ऑनलाइन क्लास अटेंडेंस का ट्रेंड क्या है, किस तरीके से। तो मैंने वीक 1 का देखा, तो वीक 1 में उनकी अटेंडेंस इतनी थी, ठीक है। वीक 2 में जो थी, ये जो वीक 2 की जो है वो, ये देखो, ये बार क्या शो कर रहा है वीक 2 वाला, ये अटेंडेंस बढ़ी है या कम हो गई? सर बड़ी हो गई। बढ़ी हो, मतलब ज्यादा हो गई ना। ओके, जी। तो अभी जो थर्ड वीक में, आज जो हमारा थर्ड वीक है, तो उसमें जो है फिर वो उससे जो लास्ट वीक से कम हो गई। तो ये हो गया जी। पार्ट 3 डेज का। तो हर बार जो है वो हर वीक के अटेंडेंस को शो कर रहा है। यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी हो गई, या ठीक है, या तो क्वांटिटी होगी, कुछ भी जो भी वहां पे दिया हुआ वो। तो यहाँ जो है वो क्लास की जगह पे क्या है, डिफरेंट सब्जियां हैं। सही। जो चलिए एक और ने, अभी देखो जो स्क्वाश जो है उसका भी 3 डेज की डेटा है। तो बताया गया है कि किसी भी जो ये एक फॉर्म है, फ्रेंच फॉर्म है, किसी फॉर्म में सब्जियां उस जो फॉर्म से सब्जियां सेल हो रही है, मेरे बात समझ में आ गई? तो अगर फ्रेंच जी फॉर्म जो, सर। तो वहां पे जो सब्जियां जो सेल हुई है वो 3 डिफरेंट डेज की कंपैरिजन है। एक तो बच्चों की टू टू लगी हुई है यार यहाँ पे, ओके। तो 3 डिफरेंट डेज का वो उनकी क्वांटिटी कितनी सेल दिखाया गया है। बेटा बात समझ में आ गई? तो अभी यहाँ पे ये जी। मुझे बता, तो कौन सी सब्जी है यहाँ पे, ये जो ग्राफ क्या शो कर रहा है, कौन सी सब्जी इस यहाँ पे है जिसकी सबसे ज्यादा सेल है इस डायग्राम में? डायग्राम को देखो, कौन सर वाले में सेकंड? कॉर्न है, कॉर्न, कौन? ठीक है। और तो ये जस्ट यू पुट एन आई एंड यू कैन कंक्लूड कि भाई सबसे कौन सी सब्जी है जो जो कम मकदार में सेल हुई है। Carrots. कैरेट्स, तो ठीक है। मैं लेटर ये अब जो डायग्राम को देखो, और फिर कैरेट का ट्रेंड क्या है? कैरेट का सर ट्रेंड ये है कि पहले पहले दिन पे सेल उसकी, पहले दिन पे सेल उसकी अच्छी थी, बेहतर थी, दूसरे दिन पे सेल कम हो गई है, तीसरे दिन में सेल कम हो गई। ये आप जो जो देख रहे हैं, जो लेचूस है इसके जो साथ में रोमन लेचूस है, उसका ट्रेंड क्या है? दिन में सेल कम थी, उसके बाद दूसरे दिन पे सेल, बड़ी। तीसरे दिन पे सेल बढ़ी। तो बात समझ में आ गई? लेकिन एक ही ये सब्जी ऐसी है कैरेट्स जिसकी सेल जो है, अगर हम कंपेयर करें तो पहले वाले दिन पे सही थी, उसके बाद जो है वो सेल कम हो गई। तो कॉर्न पे भी पहले कम थी पर बढ़ी है, और जो थी पहले जो ज्यादा थी पर कम हुई है, पर बढ़ी है, ठीक है। लेकिन कैरेट जो है वो मुसलसल जो है वो कम। तो ये जो, तो डायग्राम में हम डेटा को क्या करते हैं, डेटा को, ये जो मल्टीपल बार डायग्राम में जो भी हमारे पास जो तो यहाँ पे क्या है, सेल कितनी जो सब्जियां सेल हुई हैं उनकी कंपैरिजन हो रही है। तो हर डे का अलग बना के प्रतिदिन को हम समझ में आ गई। फिर हमने यहाँ पे ये चीज भी बना ली, यहाँ पे ये जो चीज आ रही है, तो यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा उसको, इंडिकेटर्स को, कि ये ब्लू किस चीज को शो कर रहा है, रेड किस चीज को शो कर रहा है, ग्रीन किस चीज को शो कर रहा है, और उसका टाइटल भी लगा दिया कि अमाउंट ऑफ वेजिटेबल से ये डायग्राम किस चीज को शो कर रहा है, अमाउंट ऑफ वेजिटेबल को शो कर रहा है, कौन सी वेजिटेबल जो सोल्ड हुई है एट फ्रेंच फार्म स्टैंड। मेरे बात समझ में आ गई? ये भी जी सर। तो ये हमारा कौन सा है, मल्टीपल बार डायग्राम। तो मल्टीपल बार डायग्राम में बेसिकली क्या हो रही है, कंपैरिजन भी हो रही है, डिफरेंट सब्जियों की भी कंपैरिजन हो रही है, एंड जो डिफरेंट डेज पे जो उनकी भी कंपैरिजन हो रही है। इसके साथ ये हमारा मल्टीपल बार डायग्राम्स। ये तो अब देखो, ये जो डिफरेंट जो बार्स हैं, हर डे का जो बार है वो डिफरेंट कलर्स उन्होंने भरे हुए। लेकिन आप अगर कलर नहीं भर रहे हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, शेड लगा दें आप। फॉर एग्जांपल ये जो एक
एक बार जो है इसको आप सपोज ये वाला शेड लगा दिया हमने, ठीक है, ओके। इसके साथ जो है वो स्क्वाश वाला ये जो शेड है, ठीक है, ये जो है इसको आपने ये लगा दी, प्लस की लगा दी, माइनस की लगा दी, ठीक है। तो मकसद है कि ये अभी ये, ठीक है। और जो तीसरा है इसको किसी और चीज से आप शो करो, सपोज 0 0 लगा दिया, तो छोटा छोटा सर्कल लगा दिया आपने। ये बात समझ में आ गई आपको? तो अभी पर आपने इंडिकेटर यहाँ पे बताओगे, 3 इंडिकेटर्स बताओगे कि भाई ये क्या है, भाई ये जो है वो किसके बारे में है, ये डे 1 के बारे में है। और इसका ये लगा दो, ये डे 2 के बारे में, ये डे 3 के बारे में। तो जरूरी नहीं कलर्स भरो, आप पेंसिल से ही आप ये मुख्तलिफ शेड्स लगा सकते हो उसको। आई होप कि ठीक है। और ये इस पे जो प्रैक्टिस कर लेना, ग्रुप कर लेना। मैं आपको इसके जो क्वेश्चन भी देता हूँ सॉल्व करने के लिए, वो भी कर लीजिएगा। सर है जी बाबा। सर ये सवाल पूछी तो सके त मैक्सिमम जेका सेल थी या 2 ॾींहं ते या 3 ॾींहं ते, उहा कहिड़ी सब्जी आई थी? अब हाँ बिल्कुल ठीक है, जो मकसद ही ये है ना, ये डायग्राम छा तो शो करे। फॉर एग्जाम्पल तव्हांखे आपके एग्जामिनेशन में एक डायग्राम दिया गया, ठीक है, पर उसमें से आपके से क्वेश्चन किया गया भाई इसको डायग्राम को देखो और उसके आंसर्स दो, जैसे अभी मैंने आपसे पूछे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, या तो डायग्राम बनाओ, डेटा दी है इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। और ये मल्टीपल बार डायग्राम और सिंपल बार डायग्राम में क्या फर्क है, ठीक है। तो ये भी उस किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, जैसे सिंपल बार डायग्राम है वो तो एक ही चीज कर रहा है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होती। इस पे क्या होती है, कंपैरिजन होती है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। वो ठीक, तो ये सिंपल है, इसमें किसी से भी वो सिर्फ उनका जो यहाँ पे वो दिखाया गया डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, ये दिखाया गया है कि जो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे वो किसमें थे, म्यूजिक में थे। सबसे ज्यादा किसमें थे, क्रिकेट में थे। लेकिन यहाँ पे ये जो है, जैसे यहाँ पे सपोज अबव एवरेज जो है वो सबसे ज्यादा गेस्ट का जो था फीडबैक था, जो रेटिंग थी वो अबव एवरेज में, सबसे कम जो था ये था। तो मोस्टली ये मेन फीचर, लेकिन यहाँ पे इस पे तो कंपेरिजन हो रही है, एक ही में मुख्तलिफ कंपेरिजन हो रही है, एक ही आइटम पे मुख्तलिफ कंपेरिजन हो रही है। यहाँ बिलो एवरेज में मुख्तलिफ कंपेरिजन नहीं है। तो इसको भी हम कर सकते हैं, सपोज बिलो एवरेज में अगर ये 20 गेस्ट थे, 20 गेस्ट थे, तो बिलो एवरेज में फॉर एग्जाम्पल फीमेल का फीडबैक, मेल का फीडबैक, एवरेज में भी मेल का जो फीडबैक एंड फीमेल का फीडबैक, अबव एवरेज में भी मेल का फीडबैक एंड फीमेल का फीडबैक। तो फिर वो दोनों की कंपैरिजन हम कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो लेकिन यहाँ पे भी इस तरीके से यहाँ पे नहीं है। अभी क्या है यहाँ पे, ये कंपोनेंट बार डायग्राम आ गया। सर जी जी। सर ये फीडबैक वाली बात जरा वापस से समझाना, ये समझ नहीं आई। अच्छा, ये जो उनकी जो रेटिंग थी, कुछ तो मैं ये कह रहा था कि ये सिंपल बार डायग्राम है, ठीक है। अब बिलो एवरेज का एक ही बार, पुअर का भी जो पुअर रेटिंग आई है उसका भी एक ही बार, एवरेज का भी एक ही बार आ रहा है, अबव एवरेज का भी बार एक ही आ रहा है ना बेटा, हर आइटम का एक ही बार, जी सर। ठीक है। तो ये सिंपल कहेंगे। इसमें हर आइटम में अगर 2 2 बार होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे इसको करता हूँ बेटा, ठीक है। सपोज यहाँ पे पुअर में, ठीक है भाई, टोटल पुअर में कितना है, इसमें जो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, ठीक है। अब एवरेज जो 2। रेटिंग, टोटल जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। टोटल 20 बंधु ने फीडबैक दिया हुआ, 20 गेस्ट ने फीडबैक दिया हुआ वो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अबव एवरेज जो है वो, अबव एवरेज जो रेटिंग दी है कितने बंदों ने दी हुई है बेटा, बताओ। ये डायग्राम क्या, 9, 9। ठीक है। तो अभी अगर टेबल हमारे पास ये 9। होती, टेबल हमारे पास ये होती कि भाई अबव एवरेज और सबकी रेटिंग जो होती है, अबव एवरेज जो है वो 19 में से सपोज 8 जो है, ठीक है, और यहाँ पे 11, ठीक है, 8 11। तो ये 8 किसने दी हुई है, 8 फीमेल ने दी हुई है, ठीक है। और ये किसका है, ये मेल ने दी हुई है। टोटल जो 19 हो गए बेटा।
अगर तो, लेकिन यहाँ पे तो नहीं थी, लेकिन इस तरीके से अगर हो सकती तो फिर हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते? तो फिर यहाँ पे तो हर सर तो फिर वो तो मल्टीपल डायग्राम हो जाएगा ना। तो मैं यही समझा रहा था, तो मैं यही समझा रहा था। सही है सर। तो ये तो सिंपल है ना बेटा, ठीक है, ये सिंपल है, क्योंकि जी जो सर। हर रेटिंग वाला जो हर जो कैटेगरी है, पुअर है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, एक्सीलेंट है, उसका एक ही बार बना रहा है, उसका एक ही एटम है, वो एक एटम उनको स्प्लिट नहीं किया गया। लेकिन ये जो मल्टीपल कंपेरिजन बता रहा था आपको, ठीक है, लेकिन जो मल्टीपल में क्या होता है, वहां पे एक एटम को भी हम जो डिवाइड करते हैं, जिसको हम कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने बताया इसमें जो 8 है, 11 है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो अबव एवरेज को फिर हम ये करते हैं, भाई ये जो 8 फीमेल का है और ये जो मेल का, जे मेल का होगा, तो फिर ये आ गया आपका अबव एवरेज, फिर ये हमारा कंपेरिजन हो जाता है। लेकिन सिंपल में हर एटम का एक ही बार है, ठीक है। या अगर और कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछो आप मुझसे। नो सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी? जी सर। ओके, तो ये सब, लेकिन ये जो है यहाँ पे ये मल्टीपल है, यहाँ पे हर एटम के 3 बार से, ये 4 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते की सेल है, पूरे के पूरे 7 दिन की, तो हम पूरे के पूरे जो हर डे का कितने वो बनाते हैं, हर डे का एक बार में बनाते हैं, जो 7 होता है। अच्छा बाबू, एक बात तो सुन लो, ये सारे बच्चे जो अभी कनेक्ट हो रहे हैं, अभी तक कनेक्ट हो रहे हैं, अभी तक कनेक्ट, बाबू टाइम क्या है आपका? 9 है, ठीक है, 9 बजे आपकी क्लास की टाइम है, ये अंडरस्टूड है। मैं आपको भेजे न भेजे, मकसद अगर टाइम आपका अंडरस्टूड है कि 9 बजे क्लास शुरू होगी, ठीक है। तो आईडी, अगर अगर मैंने आपको आईडी नहीं दी तो वो आईडी, मैंने उससे पहले मैं अगर आईडी नहीं दे रहा हूं तो मकसद का वो आईडी सेम है। ये अंडरस्टूड है आप दोनों? बाबा सियार, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। ठीक है बेटा, अगर वो बेटा सदफ, आर यू विथ मी यार? बाबा जी आर है यहाँ पे? जी सर, जीआर है, शायद नेट का इशू है उसका, इन तो है। तो मकसद है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आईडी नहीं दे रहा हूं तो उसका मकसद है कि आईडी विल रिमेन सेम। ठीक है सर। 9 बजे से पहले पहले मैंने आईडी दे दी तो उसका मकसद ये है कि भाई अभी नई आईडी कनेक्ट होगी, अगर नहीं दी तो आप उसी आईडी से आपको 9 बजे कनेक्ट होना है, ठीक है। 9 बजे, ठीक है। 5 मिनट में ज्यादा 9:15 बजे तक आप कनेक्ट हो जाओ। अभी देखो 10 में 10 मिनट कम है, अभी आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो दिस इज बैड। तो अभी मैं आपको एडमिट करूं या मैं पढ़ाऊं, मेरा कंसंट्रेशन जो पूरा का पूरा टूट जाता है, नहीं आप पढ़ सकेंगे नहीं मैं पढ़ा सकूंगा, तो दिस इज वेरी बैड हैबिट। अभी मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, किसी का इमरजेंसी है तो सारे बच्चों का यही ट्रेंड है, तो ये नहीं करो। अभी जैसे एक सेशन हमारा खत्म होगा, दूसरा सेशन शुरू होगा, तो फौरन आपको कनेक्ट होना है। तो मैं सेशन शुरू होने के 10 मिनट के बाद मैं किसी को अलो नहीं, मैं एडमिट नहीं करूंगा, ठीक है बेटा? ठीक है पहिरें क्लास में चयो न त माना हिकड़ी में 2 क्लास आहिनि, त पोइ जेको सेकंड क्लास असांजो उहो पोस्टपोन थी वियो, तंहिं ॾींहुं तव्हां चयो त 10 बजे हाणे क्लास वठंदासीं, तॾहिं करे साईं लेट थी वियासीं। न मूं 10 बजे कोन चयो, मूंखे फर्स्ट न, पर लास्ट क्लास में असां पूरे 9 बजे वरितो, उन टाइम ते वरितो बाबा। हा साईं, पर असां उन हो तव्हांजो हो ॻाल्हि यादि हो न,